Hello students, myself Rakesh Misra. I am going to talk about very important and essential components, that is greenhouse effects and global warming. Greenhouse effects is other way of the concept and the global warming is the other way of concept. So one by one I will introduce you about the greenhouse effect rather than the global warming. But both are correlated together, so that the greenhouse effect and global warming are together over my board. So one by one I will describe about the greenhouse effect and global warming, but both are the two different concepts. You need to know whatever the greenhouse and whatever the greenhouse effect. अब ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्रीन हाउस में भी डिफरेंस है, दोनों की चीजों को मैं अलग अलग समझाऊंगा। और दोनों का ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर बोलेंगे तो सीधे हमारा पॉल्यूशन से और करेंटली जो हमारा टॉपिक चल रहा है उससे हमको रिलेट हो जाएंगे। और जो ग्रीन हाउस अगर टर्म से बोल देंगे तो उसका पूरे पॉल्यूशन से कुछ लेना देना नहीं। तो सबसे पहले हम ग्रीन हाउस को जानते हैं। लिसन, ग्रीन हाउस एक्चुअली द प्रोटेक्टिंग लेयर ओवर द प्लांट्स. मैनी फार्मर्स यूज टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स through the different kinds of thin membrane, transparent membrane, in order to prevent the harmful UV rays as well as the high intensity of light from the sunlight. So that kinds of protective membrane is known as greenhouse, and that is used to prevent the heavy intensity of sunlight to the plants, that prevent the heavy intensity of sunlight to the plants, so that the farmers take advantage of making the green हाउस. ग्रीन हाउस के बारे में आप सब लोग देखे भी होंगे. पॉलीथीन का पतला थिन मेम्ब्रेन जो प्रिपेयर किया जाता है और उसको पूरा जो है खेत के चारों तरफ जो है एक शील्ड के फॉर्म में, एनवेलप के फॉर्म में उसको बना दिया जाता है, और उससे जो अल्ट्रा वायलेट रेज और हैवी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आती है सनलाइट की, वो फिल्टर हो जाती है, और फिल्टर होकर के कुछ ही अमाउंट में धरती पे यानी कि उसका जो पार्टिकुलर प्लांट है उस पे आकर के गिरता है. यानी प्लांट को लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे, जो प्लांट जो है दो तरह के होते हैं. सम प्लांट्स एब्जॉर्ब द हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड सम प्लांट्स एब्जॉर्ब द लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट्स. प्लांट्स that absorb low intensity of lights may able to grow during the heavy summer season by creating the shield, by the creating of greenhouse, and that greenhouse is actually related word with the greenhouse effect. अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, जो पॉल्यूशन के सेक्टर में जो पॉल्यूटेंट्स और हमारा जो करंट टॉपिक है, जो हमारा करंट लेसन है, उससे रिलेटेड जो हम बात कर रहे हैं, उससे क्या रिलेशन है ग्रीन हाउस का, उसमें ग्रीन हाउस का मतलब क्या है. लिसन, अर्थ सरफेस के ऊपर, सपोज दैट दिस इज योर अर्थ and this is the surface of earth. Surface of earth concept ये काफी important है for class 12, for class 10th, for class 9th, and all those classes who are under the study of under the circumstance of the pollution, pollutants and greenhouse effect. Means every syllabus that contains the pollution, pollutants and related word with the greenhouse is the very important. This topic is very important for that kinds of classes, that kinds of topics. तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अर्थ सरफेस पे. ये सरफेस ऑफ अर्थ, ये लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सरफेस ऑफ अर्थ. अर्थ सरफेस के ऊपर इमीडिएटली ऊपर अगर मूव करेंगे तो कुछ स्पेशल गैस का एक लेयर है. सम ऑफ द गैस दैट इज फॉर्म अ लेयर दैट अवेलेबल जस्ट अबव द अर्थ सरफेस. दैट लेयर ऑफ अर्थ, दैट लेयर ऑफ गैसेस is known as the greenhouse gas. Greenhouse gas. So let us talk about what are the major components of greenhouse gas. Methane. Methane, that is formula CH4. Water vapor. Water vapor. Carbon dioxide and oxides of nitrogen, that is known as NOx, NOx, nitrogen oxide, nitrogen oxides. Listen carefully. These form the layer or envelope over the earth surface. That envelope is known as greenhouse gas envelope. ये जो envelope दिख रहा है ये greenhouse gas envelope है. अब ये करते क्या है, एक्चुअल में एक शील्ड तो बना लिया, बट जब सनलाइट फॉल होता है, सपोज दैट ये सनलाइट और सन की हीट एनर्जी जब इसमें फॉल डाउन होता है तो ये उस हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देते. हीट एनर्जी जब अर्थ सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होती है तो उसको वो बाहर नहीं जाने देते हैं और फिर से रिबैक करते हैं अर्थ सिस्टम पे. फिर हीट एनर्जी को अर्थ सिस्टम पे रिबैक करते हैं, यानी पहले वो गर्म होते हैं खुद और फिर अर्थ सरफेस को गर्म करते हैं. तो ये हीटिंग, ये ओवर हीटिंग कहलाती है ग्रीन हाउस इफेक्ट.
So the overheating of Earth's surface due to greenhouse gases is known as greenhouse effect. Overheating of Earth's surface due to greenhouse gases is known as greenhouse effect. That are mentioned as a major heading. I hope आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रिलेटेड वर्ड विद द ग्रीन हाउस गैसेज. और ग्रीन हाउस को बोलोगे तो वो दूसरी चीज है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है. ठीक है. सो द व्हाट इज द इंपॉर्टेंट टू लर्न हियर यू द ग्रीन हाउस गैसेज, द कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट गैसेज लाइक मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड इज द सोर्स ऑफ is the major composition of the greenhouse gases, and their role is to absorb the heat energy from the sunlight so that the sunlight and their heat never reback to the atmosphere and the earth's surface day by day get heated. So the temperature in each years rises. In each 100 years it is measured that is overall temperature of the weather is 1 to 2 degrees centigrade is heated, and that is due to the greenhouse effect. So what are the major problems of greenhouse effects? The source of methane, that is biofuels, and many kinds of unburned organic compounds are the basic source of methane gas. Water vapor, carbon dioxide, that is a very much effective and having the heavy dose produced by the plants as well as the different kinds of animals that produce the carbon dioxide by means of respiration process. So carbon dioxide also released out through the burning of the things, but they are major cause. The burning things of carbon dioxide are the major cause, and they are actually available in our atmosphere and causes the greenhouse effects. Nitrogen oxide. So these are the different kinds of mixture of gases that is important to know, and that is important for the greenhouse gases. So greenhouse gases को रोकना है तो इनके सोर्स को रोकना होगा, यानी कि पॉल्यूशन को रोकना होगा. ठीक है. काज ऑफ ग्रीनहाउस इफेक्ट ये एग्जाम में आते हैं. काजेस ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट्स. तो रिसेंट रिसर्च में सबसे ज्यादा काज पाया गया तो किसका है? फॉरेस्ट फायर. Deforestation. Forest fire, deforestation are the major cause of greenhouse gas. प्लांट जितने कम होंगे ग्रीन हाउस गैसेस उतने बढ़ेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का गुड एब्जॉर्बर अगर कोई है तो प्लांट्स है. प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके ग्लूकोज का सिंथेसिस करते हैं, यानी कि ग्लूकोज को बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से कम करते रहते हैं. अगर आप प्लांट्स को कटिंग करते रहेंगे, डिफॉरेस्टेशन करते रहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एटमॉस्फेयर में बढ़ता रहेगा. ठीक है. क्योंकि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने की कोई टेक्निक नहीं है. ठीक है. एनिमल्स जो है रेस्पिरेशन करते हैं जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और प्लांट जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं. तो फोटोसिंथेसिस में जितने अमाउंट में रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हम लोग करते हैं उतने अमाउंट में वो एब्जॉर्ब कर लेगा. तो ये बहुत प्रॉब्लम है और इसको आप अपने वे में एक्सप्लेन कर लेंगे. ठीक है. नाउ बैक टू द इफेक्ट्स, दैट इज प्रॉब्लम्स. प्रॉब्लम्स क्या है? बेसिक प्रॉब्लम्स क्या होगा किसका? ग्रीन हाउस इफेक्ट. उसको नोटिस कर लीजिए. Abnormal weather condition. Abnormal weather. These are the major problems. Abnormal weather, जिसको एल नीनो इफेक्ट भी बोलते हैं. ठीक है. इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग, राइज इन overheating of Earth's surface due to effects of greenhouse gases known as greenhouse effects, and overheating of Earth's surface is known as global warming. सिर्फ overheating बोल देंगे, overheating of Earth's surface तो ये हो जाएगा global warming. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग का ग्रीन हाउस इफेक्ट्स की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. ठीक है. ऐसा बोल सकते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है. इसके अलावा और क्या क्या है प्रॉब्लम? मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस, और इसके बाद क्या? राइजिंग सी लेवल. ये सब प्रॉब्लम्स है जिसको आप अपने से एक्सप्लेन कर देंगे. जब पोलर आइस मेल्ट होगा तो सी का लेवल जो है वो बढ़ता रहेगा. आई होप आपको ये
चीजें समझ में आ गई कि ग्रीन हाउस क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स क्या है और उसका डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है। नाउ बैक टू द ओजोन लेयर डिप्लेशन. Now ozone layer depletion. First of all, you need to know the ozone. Ozone is the triatomic molecules of oxygen. Triatomic means the oxygen has three atoms in the structure of ozone. जब ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपस में जुड़ करके एक कोई मॉलिक्यूल्स बनाते हैं तो उसको ओजोन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, O3. O3 is the triatomic molecular structure that is known as ozone. ठीक, इसको आप डिफाइन कर लीजिएगा, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। लोकेशन पे चेक करते हैं, सबसे पहले हम अर्थ के बारे में थोड़ा सा जियोग्राफी जान ले। लिसन, the earth surface, when you move from earth surface from the surface to 6 to 20 kilometer above, there will be a layer that is known as the tropospheres, and that tropospheres are the source of ozone, and in the tropospheres the ozone are known as bad ozone. So where do the bad ozone found? At the surface of, in the range of tropospheres. When you move from the surface to the 50 kilometer above, there will be stratospheres. When you move from surface to the 85 kilometer, there will be the mesospheres. When you move from surface to 100 to 690 kilometer, there will be thermospheres. When you move from surface to 100 kilometer, there will be exospheres. तो यानी सरफेस से 1000 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो एक्सोस्फीयर मिलेगा। इसके ऊपर भी एनवायरनमेंट है, बट यहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसको बोलते हैं आयनोस्फीयर्स। आयनोस्फीयर्स क्या होता है, ये 1000 प्लस किलोमीटर ऊपर जाएंगे, यानी 1000 किलोमीटर से ऊपर के रेंज को कवर करेंगे तो उसको बोलेंगे आयनोस्फीयर्स। हमको बाकी चीजों के बारे में कुछ नहीं जानना है, हमको सिर्फ मतलब रखना है स्ट्रेटोस्फीयर्स और ट्रोपोस्फीयर्स में, अगर ओजोन लेयर को पढ़ना है तो ओजोन लेयर का पहला बिगिनिंग कहां से होता है, 6 to 20 किलोमीटर, ठीक है। और ये 50 किलोमीटर स्ट्रेटोस्फीयर्स में भी होते हैं। ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फीयर्स में भी होते हैं, ट्रोपोस्फीयर्स में होते हैं। द ओजोन दैट आर इन द स्ट्रेटोस्फीयर्स इज नोन एज गुड ओजोन। कीप इन माइंड। सो बैड ओजोन इज हार्मफुल फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स बोथ। इट मींस from 20 to 50 kilometer, the thickness of ozone is available. So 20 kilometer will be in the range of troposphere, and 50 kilometer will be in the range of the stratosphere. That is the distribution of ozone. And the ozone that are in the layer of tropospheres are known as bad ozone, that is harmful for the plants and animals. And how do the good ozone helpful to us? Listen carefully. The earth's surface has an envelope of ozone gas, and that ozone gas prevent us from harmful UV rays that are cancer causing rays that released out from the sunlight. But our biodiversity and every kinds of living creatures get protected from the harmful UV rays with the help of the useful ozone layer. यानी ओजोन लेयर एक ब्लैंकेट का काम करता है। इट एक्ट एज द ब्लैंकेट विच प्रिवेंट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यानी कि ओजोन लेयर अगर मिट जाए, हट जाए, तो यूवी रेज डायरेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर अफेक्ट करना शुरू कर देगा, यानी कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर को इफेक्ट करेगा और हम लोग स्किन कैंसर के शिकार हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं ओजोन लेयर की मेन प्रॉब्लम। ये लोकेशन आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। कॉन्सेप्ट इन द ट्रोपोस्फियर्स एंड स्ट्रेटोस्फियर्स between tropospheres and stratosphere between 20 to 50 किलोमीटर। ओजोन लेयर की थिकनेस को नापते हैं किसमें, डॉप्सन यूनिट में। डॉप्सन यूनिट इज द unit for the measurement of thickness of ozone layer. That is the way to define the thickness of ozone layer. अब आते हैं ओजोन लेयर की मेन प्रॉब्लम क्या है। लिसन केयरफुली। ओजोन लेयर नाउ डेज गेट डिप्लेटेड। डिप्लेटेड मीन्स क्या होता है, पतला होना। डी मीन्स होता है डिलीट होना, प्लेट टू प्लेट उसका अरेंजमेंट होता है। अब वो प्लेट धीरे धीरे पतला हो रहा है, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक में क्या करेंगे, एक इमेज दिया हुआ है, कुछ सैटेलाइट इमेज दिया हुआ है अंटार्कटिका के ऊपर के कुछ फिगर लिए गए हैं, जिसमें ये पाया गया कि ओजोन लेयर किसी किसी जगह पे पतला हो गया, बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल ओजोन लेयर एकदम थिन हो गया है, ठीक है। कहीं कहीं थिक
और कहीं कहीं 3 है। रीजन क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नोट कर देना यहाँ पे रीजन फॉर डिप्लीशन। यहाँ पे आपको डिप्लीशन को जरूर पढ़ लेना है और लिख लेना कॉपी में। ओजोन लेयर डिप्लीशन, continuous degradation of ozone layer with the effect of chlorofluorocarbon, that is CFC. Chlorofluorocarbons are in short known as CFC, and the source of CFC is the air conditioned refrigerator, etc. So avoid refrigeration, avoid air condition if you are having other facilities, and substitute of these two equipment, because these are the source of chlorofluorocarbon, and chlorofluorocarbon deplete or degrade the ozone. How? Listen carefully. Chemical reaction to depletion. ओजोन लेयर डिप्लेशन का केमिकल रिएक्शन कैसे होता है? लिसन, ओजोन O3 उसको डिप्लेट करने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पहले उसका फार्मूला यहाँ पर लिख रहे हैं CFCl3। ये CFCl3 पहले क्लोरीन का एक्टिव फ्री रेडिकल जनरेट करेगा। कैसे? ये Cl क्लोरीन का एक्टिव फ्री रेडिकल बन गया, बहुत घातक होता है, अकेला क्लोरीन बहुत घातक होता है, ठीक है। और CFCl2 ये पड़ा रहता है एटमॉस्फेयर में, ठीक। CFCl3 वो कन्वर्ट हुआ किसमें? क्लोरीन फ्री रेडिकल में। अब ये क्लोरीन फ्री रेडिकल बार बार किस पे अटैक करेगा? ओजोन के ऊपर अटैक करेगा। फर्स्ट टाइम अटैक करेगा तो ClO2 बना लेगा पहले, और एक ऑक्सीजन को फ्री कर देगा। एक ऑक्सीजन को ये ClO बनाएगा, ClO बनाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को फ्री कर देगा। अब ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, अब ओजोन तो नहीं रह गया है। नेक्स्ट टाइम कहीं से फिर ओजोन का, कहीं से फिर CFCl3 का फ्री रेडिकल आकर के उस O2 पे अटैक करेगा। फिर यही जब दूसरा किसी CFCl3 का आकर इस O2 पे अटैक करेगा तो फिर क्या बनाएगा? ClO बनाएगा, और वो ऑक्सीजन जो पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा एनवायरनमेंट में। यानी कि पहले तो O3 था, लेकिन अब O2 और O में टूट गया, यानी कि O3 जो है एक बार O2 में टूटा, फिर ऑक्सीजन में टूटा, यानी कि बार बार ये ब्रेकआउट हो गया। अब ये एग्जिस्टेंस ओजोन का नहीं रह गया, जिसकी वजह से ओजोन डिप्लेट होना शुरू हो गया। पर्टिकुलर किसी प्लेस में तो ओजोन इतना पतला हो गया कि डायरेक्ट यूवी रेज फॉल होने का खतरा बढ़ गया। सो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम दैट अपीयर्स आफ्टर द ओजोन लेयर डिप्लेशन? इट इज योर होमवर्क, हाउ टू राइट द प्रॉब्लम्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन। लिसन केयरफुली। द स्किन कैंसर अल नीनो इफेक्ट, नोट कर लीजिए कॉपी में, एल नीनो, EL लिखेंगे, एल नीनो इफेक्ट। एल नीनो इफेक्ट क्या होता है? एबनॉर्मल वेदर, सुबह को बारिश, शाम को ठंडी और दोपहर में गर्मी, एबनॉर्मल वेदर कंडीशन, ठीक है। म्यूटेशन अमंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कभी कभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में म्यूटेशन होता है। देखते हो किसी साल जो है मैंगो में फ्रूट नहीं आते हैं, ठीक है। किसी साल जो है गेहूं मर जाता है, देखते हो कि गेहूं में पौधे, मतलब उसमें तुम्हारा डेथ हो जाता है, उसका पर्टिकुलर जो है उसमें ग्रेन्स नहीं आते, पतला हो जाता है। ये सब एल नीनो इफेक्ट एबनॉर्मल वेदर कंडीशन की वजह से होता है। दैट इज द वाई द overall pollutions and as well as the greenhouse effect get reduced, as well as greenhouse effect and the ozone layer depletion should be reduced out from our surrounding, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क मैंने लिख दिया, प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लेशन कैसे करते हैं। अवॉइड एयर कंडीशन, यूज फ्रेश एयर एंड नेचुरल एयर, कीप इन माइंड दैट इज द वे टू डिफाइन द ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड the ozone layer depletion. I hope दोनों कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। If you have any kinds of problems, then immediately contact me in live classes or comment box. Thank you.